सब कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरी दृश्य में ईश्वर की आवाज होकर हालेलुया के नारे को बुलंद करें। इन ज़बानों के लिए खुदावन तेरा गैर मसा तेरी कुव्वत तेरे पापों का मसा चाहते हैं खुदावन। ऐ खुदावन तेरा नाम जिसका नामों से आला है खुदावन। इन जिंदगियों के लिए तेरे कलाम की बरकत तेरी बख्शिश चाहता हूँ खुदा। ये लोग जो तेरे हुजूर पे हैं खुदावन बड़े ईमान के साथ है खुदावन तेरे हुजूर आते हैं खुदा। तेरे हुजूर इंतजार करते हैं खुदावन। आज के कलाम के लिए आए खुदावन। आज के कलाम का बीज ऐ खुदा जो इनकी जिंदगी में बोया जाए खुदावन वो 30 60 बरकतों का फल आए खुदावन। ऐ खुदा हम सब कुछ शुक्र ब्लेस करें खुदा। तेरे कदम के लिए तेरी ब्लेसिंग तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। वो जब तेरे कलाम को बयान करे तो खुदावन तो अपने हालत के साथ हमें खुदावन तेरा शुक्र हो। हमारे दरमियान रहम सलाफीन है मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा वो इस दुआ में रहनुमाई करें। शाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें। बाकी सब को हम नजर झुक जाए और दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। आए आपकी भरपूर तारीफ में खुदा अपने खालिक को दावत में दुआएं हालेलुया। आप जानते हैं हालेलुया कैसे कहना है?
سب کو سلام ہو۔ آج اس بات کو ہم بائبل مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں، کیونکہ فادر ڈے کے تعلق سے پہلے بھی سکھا چکا ہوں، لیکن کیونکہ آج ہم نے صرف روح القدس کے کام کے تعلق سے سیکھنا ہے کہ روح القدس جو ہے اس کے کیا کام ہے، وہ کیا انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے اور کیوں انسان کی زندگی میں آتا کیوں۔ آج کسی بات کو جب سیموئیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو سیموئیل کی کتاب ہمیں اس بات کو بیان کرتی ہے۔ سیموئیل کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 6 ہے۔ دیکھیں آج پہلا سیموئیل 10 باب 6 ہے۔ تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ بائبل مقدس میں یہ سب جو قوم بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، سیموئیل نے اسے مسح کیا تو اسے بتایا کہ جب تو جائے گا تو راستے میں تجھے کچھ نبی ملیں گے اور تو ان کے ساتھ نبوت کرے گا اور خدا کا روح پر کیا ہوگا، زور سے نازل ہوگا اور تو بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ یعنی تو وہ آدمی جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ یہ روح القدس جو ہے وہ انسان کو نیا مخلوق بناتا ہے۔ گلیتیوں کے خط میں لکھا ہے نیا مخلوق، یعنی وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، وہ انسان کو نیا کرنے کے لیے آتا ہے اور بدل دیتا ہے۔ اس کے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے بدل دیتا ہے اور کیا ان کی زندگیوں میں کام جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے تو اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ روح القدس کے تعلق سے کچھ مختلف نظریات ہیں۔ اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ روح القدس کو جبرائیل فرشتہ کہتے ہیں، وہ روح القدس کو جبرائیل فرشتہ کہتے ہیں، اور ہمارے اپنے اس کو تثلیث کا تیسرا اقنوم کہتے ہیں۔ یعنی اس کے تعلق سے مختلف نظریات ہیں، لیکن بائبل مقدس یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرنا، کیونکہ وہ خدا کی، کیونکہ بائبل مقدس میں آگے اس بات کو دیکھیں گے، یہ روح القدس وہ قوت ہے وہ نکلتی ہے اور ہم میں آ کر کام کرتی ہے، اور وہ بہت سارے کام کرتی ہے، وہ ہمارا مددگار بھی ہے۔ بائبل مقدس میں وہ ہمارا مددگار بھی ہے، لیکن اس کا وعدہ خدا نے کیا تھا کہ ایسا ہوگا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو کیا ہوگا کہ جب ہم ایمان کی لوکا کی انجیل 24:49 پڑھتے ہیں تو یہاں پر آخری بات ہے، اس کی 49 آیت میں جو بات لکھی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں ہم سے ایک وعدہ کیا۔ ہاں جی، کیا وعدہ تھا؟ اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے۔ یسوع مسیح نے قرآن تعلیم ہمیں یہ بتایا کہ جس کا میرے باپ نے کیا کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ یوں
لکھا ہوا ہے کہ یوئیل کی کتاب میں خدا نے وعدہ کیا تھا، اور اسی وعدے کو جب روح القدس عید پینتیکوست پر ان پر نازل ہوا تو اسی وعدہ کو جو ہے پھر پترس نے بیان کیا کہ بھائی، کیونکہ انہوں نے کہا یہ ابھی تازہ بہ کے نشے میں ہیں، کیونکہ وہ غیر والوں میں دعا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ اب جو ہے یہ تازہ بہ کے نشے میں ہے۔ پترس نے کہا ابھی تو پہلے ہی دن چلا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی نشہ کرنے والا شخص ہو وہ خالی پیٹ نشہ نہیں کرتا، اس لیے اس نے کہا ابھی تو پہلے دن چلا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے جب یہ کہا تو دیکھیں اس وعدہ جب پورا ہوا تو ایمان 2 باب کی 14 کو جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 2 کی 14 کہ اس بات کا جی 13 سے پڑھیں، اسی 2 کی 13 14 اور بعد میں ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ میں کے نشہ میں، یہ تو تازہ بہ کے نشہ میں ہیں۔ انہوں نے ٹھٹھا کا مطلب مذاق کیا، یہ تو تازہ کے میں کے نشے میں ہیں، لیکن یہ بات پترس نے اس بات کو کلیئر کیا، بھائی یہ وہ بات نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ وعدہ ہے خدا کا۔ کیا وعدہ تھا؟ جب ہم اس کی اگلی 14 کو پڑھتے ہیں، لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا ہاں جی، اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیو اے یہودیو اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر سنو۔ ہاں جی آگے، جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، یہ نشہ میں نہیں ہے۔ ہاں جی، کیونکہ ابھی تو پہلی دن چلا ہے۔ ہاں آگے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ تو یوئیل نبی کی معرفت یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ تم پر روح القدس کو کیا کرے گا، نازل کرے گا، اور کیا ہوگا۔ جی آگے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے، خداوند خدا فرماتا ہے، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا، اور تمہارے بڑھے خواب دیکھیں گے۔ بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، یعنی ان پر اپنے روح میں سے کیا کروں گا، ڈالوں گا۔ یہ وہ بات ہے، یہ کوئی نشے میں نہیں ہے، یہ وہ وعدہ جو خدا نے یوئیل نبی کے معرفت کیا تھا، آج وہ وعدہ پورا ہوا ہے، کیونکہ خدا اپنے جو وعدے کرتا ہے اس میں اس کو شد پورا ہے، اور ایسا کیا وہ وعدہ اس دن پورا ہوا ہے۔ اور اس بات کو جب آگے دیکھتے ہیں کہ پہلا باب اس کی 4 آیت ہے۔ جی پہلا باب ایمان کی بات، جی اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کا منتظر رہو، جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے
हुए हो। जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके। यानी ये खुदा का क्या था? रूह कुद्दस देने का वादा है और वो देता है। और रूह कुद्दस जब नाज़िल होता है, इस पर भी बहुत सारे लोगों का इख्तिलाफ है। कुछ डिनोमिनेशन ऐसी हैं जो कहती हैं कि जब बपतिस्मा दिया जाता है तो उसी वक्त रूह कुद्दस नाज़िल हो जाता है। वो रूह कुद्दस को गैर ज़बानों में नहीं मानते और वो कहते उसी वक्त होता है। लेकिन यीशु मसीह पर उसी वक्त रूह कुद्दस का नज़ूल जो है उसका मकसद कुछ और है। जब तक हम किसी बात को पूरे तौर पर नहीं समझ पाते तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। यहाँ जो है उसने वादा किया और जब वो वादा पूरा हुआ तो क्या हुआ कि रूह कुद्दस क्या हुआ पर नाज़िल हुआ। लेकिन जब भी रूह कुद्दस नाज़िल हुआ है लोगों ने गैर ज़बानी बोली। आए हम इसी बात को ईमान की किताब 2 बाब की पहली आयत को देखें। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा वो थे। सब एक जगह जमा थे। ईद पेंतिकोस्त का मतलब होता है 50वां दिन। ये ईद फसह के 50 दिन के बाद ईद पेंतिकोस्त आता था, इसलिए इसको पेंतिकोस्त कहते हैं। यानी ये 50वां दिन है। तो ये उस दिन पर हुआ क्या जी? यकायक आसमान यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग में शोला सी फटती हुई हाँ जी ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये 120 लोगों की जमात थी और यहाँ से ही पेंटिकॉस्टल चर्च का आगाज हुआ। पेंटिकोस्ट से ही उन्होंने इस चर्च का नाम पेंटिकॉस्टल रखा। इसका मकसद है गैर ज़बानें बोलने। माने आप किसी को जब ये कहते हैं कि पेंटिकॉस्टल है तो उसको आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम गैर ज़बानें बोलते हैं। वो पेंटिकॉस्टल लफ्ज़ से समझ आता है कि ये गैर ज़बानें बोलने वाले। और इसी तरह से ये उन पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो हुआ क्या? और वो सब रूह कुद्दस से भर गए। वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। हाँ जी, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। यानी यहाँ से कलीसिया का आगाज हुआ और यहाँ पर 3000 को बोले। यानी इब्तदाई कलीसिया पेंटिकॉस्टल है, लेकिन अगर हमें इल्म हो तो हमें पता चलता है कि इब्तदाई कलीसिया कौन सी है, क्योंकि ये 4 मज़ाहिब जो हैं, यूं तो इस वक्त दुनिया के अंदर 4200 मज़हब हैं। कितने? 4200। लेकिन 4 बड़े मज़ाहिब हैं जिनका तल्लुक एशिया से है। पहले यहूदी, फिर हिंदू, फिर उसके बाद मसीही और चौथे नंबर पर इस्लाम है। और ये चारों मज़ाहिब एशिया के हैं और मसीहत जो है वो एशियन है। इसका तल्लुक यूरोप के साथ नहीं है। यीशु मसीह खुद भी एशियन है। और यहाँ पर इस बात को देखें, यहाँ से ही मसीहत का एशिया से आगाज हुआ, यूरोप से नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बाइबल का सही किताब नहीं रखते तो हम समझते हैं नहीं फलां मिशन जो है वो बहुत पुरानी। ऐसा नहीं। अब बाइबल का के मुताबिक पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो है वो पहली कलीसिया है जो जिसका सरबराह पतरस था और वो ही वो उस कलीसिया का सरबराह था। और यहाँ पर क्या से कैसे रूह कुद्दस नाज़िल हुआ है? गैर ज़ुबानों में। कैसे हुआ है? गैर ज़ुबानों में हुआ है। ये बाइबल का तस्वीर ठीक और दुरुस्त तालीम है। और जहाँ कहीं भी लोग इस बात को शायद नहीं पढ़ते, वो समझते हैं कि वहाँ पर ऐसा हुआ है। यहाँ पर 16 मुल्कों के लोग थे और उन्होंने जब गैर ज़ुबानें बोली तो उन्होंने यूँ समझा कि ये हमारी ज़ुबान बोलते हैं।
क्योंकि रूह कुद्दस का नज़ूल होने का मकसद ये था कि वो लोगों की बातों को समझे। ये एक बहुत बड़ा मौजूदा था। और लेकिन जहाँ भी रूह कुद्दस का नज़ूल हुआ वहाँ पर गैर ज़बान नहीं बोली गई। ईमान 10 बाब को जब देखते हैं तो यहाँ पर वो लोग जो नजरिया रखते हैं कि रूह कुद्दस बपतिस्मे के वक्त ही नाज़िल होता है, उसी वक्त मिलता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में कुछ और भी बयान करती है। जब हम इस 10 बाब की 44 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो उन्होंने रूह कुद्दस को कैसे पहचाना कि रूह इन पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ है। हाँ जी, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुद्दस उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। हाँ जी, और पतरस के साथ जितने मखतून ईमानदार आए थे। मखतून का जो लफ्ज़ मतलब है, इसका मतलब है जिनका जो खतनाशुदा थे, क्योंकि ये यहूदियों में जरूरी था असली मखतून और नामखतून, इनका असल यही है। हाँ जी, वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी वो इस बात से हैरान हो गए कि ये तो गैर कौम के लोग हैं, इन पर कैसे रूह कुद्दस नाज़िल हो गया। लेकिन खुदा जो चाहता है वो करता है, क्योंकि खुदा हमारा पाबंद नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। क्योंकि जो काम वो करता है वो ठीक और दुरुस्त होता है, उसके पीछे कोई रीजन होता है, कोई ऐसे वो काम नहीं करता। जी, उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। उन्होंने कैसे पहचाना कि जब रूह कुद्दस इन पर नाज़िल हुआ है कि क्या कर रहे थे? जब रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ तो वो क्या कर रहे थे? गैर तरह ज़बानें बोल रहे, तरह तरह की ज़बानें बोल रहे। उन्होंने पहचान लिया, कहा ये रूह कुद्दस गैर कौम पर। लेकिन आगे पतरस ने क्या कहा? जी, पतरस ने जवाब दिया। हाँ जी, पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है? हाँ जी, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुद्दस पाया। जिन्होंने कैसे रूह कुद्दस पाया है? हमारी तरह। उन्हें कहा जैसे हमें शुरू में रूह कुद्दस मिला है, इन्हें भी वैसे ही रूह कुद्दस मिला है। इन्होंने हमारी तरह रूह कुद्दस पाया है। क्योंकि उन्हें कैसे पहचाना? उन्हें गैर ज़बानें बोलते हैं। इसका मकसद ये है कि खुदा इस बात का भी पाबंद नहीं है कि इसने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया, वो पहले भी रूह कुद्दस दे सकता है, क्योंकि ये उसकी मर्जी है कि वो अपने तरीके कार से काम करता है। वो हमारी बात को नहीं देखता, वो अपना काम जैसे करना है वो वैसे ही करता है। उन्होंने बाप पे यहाँ जिनका नजरिया ये है कि रूह कुद्दस बपतिस्मे के वक्त मिल जाता है, तो उनका नजरिया तो यहाँ फेल हो गया, क्योंकि रूह कुद्दस बपतिस्मा लेने से पहले मिल गया है। और बहुत सारे लोग आज भी हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिनको पानी का बपतिस्मा बाद में मिला, रूह कुद्दस का बपतिस्मा पहले मिला। ये खुदा का अपना एक काम है, जिस तरीके से वो काम करता है। उन्होंने फिर उनको बपतिस्मा दिया, ये इसका खानदान था। यहाँ पर भी रूह कुद्दस कैसे नाज़िल हुआ? गैर ज़बान। अब मैं आपके सामने एक तीसरा सबूत और पेश करता हूं कि वहां पर भी रूह कुद्दस का नज़ूल कुछ ऐसे ही हुआ। ईमान 19 बाब पहले ऐसे पढ़े जी। और जब अपुलुस करंथस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाके से गुजरकर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्दस पाया? रूह कुद्दस पाया। मैंने कहा भाई तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्दस पाया, क्योंकि खुदा का वादा था
कुछ मिला है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं। हमने तो सुना भी नहीं है कि रूह कुदस नाज़िल हुआ है। उन्होंने कहा हमने तो सुना भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूह कुदस की तालीम ही नहीं है। जब रूह कुदस की तालीम नहीं रहेंगे तो लोग रूह कुदस को हासिल क्यों करेंगे? उन्होंने कहा हमने तो सुना ही नहीं। जी, उसने कहा पर तुमने किसका उसने कहा बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा पौलुस ने कहा यूहन्ना ने लोगों को ये ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। हाँ जी, उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है, यही इब्तदाई कलीसिया की तालीम थी। ये उन्होंने फिर उनको दोबारा बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। तो फिर क्या किया? जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह की ज़ुबानें बोलने और नबूवत करने लगी। पौलुस ने उन पर हाथ रखा। आपने भी देखा होगा कि जब रूह कुदस का सेजन ले लिया जाता है तो खादम जो है वो लोगों पर क्या रखता है? हाथ रखता है। ये बाइबल की तालीम है, वो अपनी तरफ से नहीं करते। ये पौलुस ने भी उन पर हाथ रखा। और पीछे अगर 7 बार में देखते हैं तो वहां पर भी जो है लिखा है कि जब उन्होंने सुना कि वहां पर खुदा के लोगों ने कलाम को कबूल किया लेकिन रूह कुदस नहीं पाया, उन्होंने पतरस और यूहन्ना को भेजा ताकि वो रूह कुदस पाए और उन्होंने उन पर हाथ रखा तो रूह कुदस पर नाज़िल हुआ। यानी कि ये हाथ रखना, रूह कुदस का नज़ूल होना, ये बाइबल की तालीम है। ये कलाम मुकद्दस बयान करता है। जी, और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। 12 आदमी थे जिन्होंने उस वक्त बपतिस्मा लिया और फिर रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ। कैसे होगा? बाइबल को जब हमने पढ़ा है तो लिखा है वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। रूह कुदस जहां पर भी नाज़िल हुआ है, जहां भी नज़ूल हुआ है तो गैर ज़बानों में यही नज़ूल हुआ है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये मैंने एक नहीं 3 सबूतों से आपको बताया है कि जहां रूह कुदस नाज़िल हुआ वहां लोगों ने क्या बोला? गैर ज़बानें बोली। इसीलिए उनको पेंटिकॉस्टल कहा जाता है। तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है पर नाज़िल हुआ। हाँ जी, ईमानी की किताब के में हम अभी बता रहा था। देखिए 8 बाब की 14 आयत को देखिए कि क्या हुआ था कि उन्होंने सिर्फ बपतिस्मा लिया था। यहां से पढ़ते हैं आप 12 से। हाँ, 8 बाब की 12 से पढ़े। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया, हाँ जी, जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था। हाँ जी, कौन ये खबरी खुशखबरी देता है? ये फिलिप्पस है। और उसने सारे शागिर्द इसी नाम की बुनियादी करते थे। और इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो सब हाँ जी खुशखबरी देता था। तो सब लोग मर्द और औरत बपतिस्मा कौन ले लेंगे? बपतिस्मा मर्द, औरत, औरतें, यानी बच्चों का बपतिस्मा तो बाइबल बयान नहीं करती है। ये सबूत है हमारे पास। अगर हमें हमसे ये कहें कि आप बच्चे बड़ों को बपतिस्मा क्यों देते हैं, क्या कहीं बाइबल में लिखा? मैं दिखा सकता हूँ। हाँ लिखा है, हाँ ये लिखा है मेरे पास, ये सबूत है क्योंकि ये बाइबल का सबूत है, इसमें गलती नहीं हो सकती। हाँ जी आगे। शमौन ने खुद भी यकीन किया
किया, जवान ने खुद भी यकीन किया यकीन किया और और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहा हाँ जी गया और निशान साथ रहा। हाँ जी और निशान में बड़े बड़े मोजज़े होते थे, देखकर हैरान हुआ। अब जब सुनो ने सुना कि यरूशलेम में क्या हुआ है, कि सामरियों ने क्या किया है, आगे जी जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थी सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की। इसका मकसद है ये जो उसी वक्त रूह कुद्दस का बपतिस्मा कहते हैं, यहाँ पर भी उनकी तारीफ फेल हुई, क्योंकि बपतिस्मा तो लिया, रूह कुद्दस नहीं पाया। यानी ये बात बाइबल का दस बयान करती है कि हाँ जी, क्योंकि वो उस वक्त तक उन पर किसी पर नाज़िल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदा यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुद्दस हाथ रखने से रूह कुद्दस पाया। यानी अगर ये कहा जाए कि बपतिस्मे के वक्त ही रूह कुद्दस मिल जाता है, तो इसका मकसद है ऐसा यहाँ बाइबल बयान करती है, ऐसा नहीं। हाथ रखने से भी रूह कुद्दस मिलता है, रूह कुद्दस पहले भी मिल जाता है। यानी रूह कुद्दस का उसका वादा है, और ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जो रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ जो मसीही नहीं, और ऐसा बहुत सारी पुस्तक लिखा है जी। तो यहाँ पर इस बात को हमने देखा है कि रूह कुद्दस का नज़ूल जो है वो हाथ रखने से भी लोगों को रूह कुद्दस मिलता है। हाँ जी, ये एक खुदा का इनाम है। क्या इनाम है? 2 बार पढ़ती साइड ईमान बल्कि 37 से पढ़ो। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों हम क्या करें, हमसे गलती हो गई है। लेकिन अब इस गलती का अजाला कैसे होगा? तो उन्होंने क्या कहा जी? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, क्योंकि गुनाह हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका हल भी है, और वो तौबा है। गुनाह हो गया ना, बड़ी बात नहीं, इंसान है। बाइबल का 10 में लिखा है ऐसा कोई इंसान नहीं जो गुनाह नहीं करता, गुनाह हो जाता है, लेकिन गुनाह का करते रहना मुसलसल ये ठीक नहीं है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया है, तौबा करो और क्या करो जी, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। नहीं, बपतिस्मा जो है क्या है? गुनाहों की माफी के लिए है। ये कोई रस्म नहीं है, ये गुनाहों की माफी के लिए है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु मसीह को हम अपना निजात देता होने का ऐलान करते हैं। हम ऐलान करते हैं कि वो हमारा निजात देता है। और ये जब हम ऐसा करते हैं तो फिर रूह कुद्दस क्या है नहीं, तो तुम रूह कुद्दस के नाम में पाओगे, और तुम रूह कुद्दस के नाम में पाओगे। लगता है इससे बड़ा कोई नाम खुदा के पास नहीं है, इससे बड़ा कोई नाम खुदा के पास नहीं है। रूह कुद्दस जो है वो बहुत बड़ा इनाम है जो खुदा देता है। और ये इनाम जब हमारी जिंदगी में आता है तो बहुत बड़े काम करता है। हालेलुया, सब धन्यवाद से बोलते हैं हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस में ये हमें इनाम के तौर पर मिलता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोगों का इतराज है कि उस वक्त तो लोगों ने
الفاظ انہوں نے بولے انہوں نے سمجھتے تھے، لیکن اب کیوں نہیں سمجھ؟ اور غیر زبانی ہی کا چناؤ خدا نے کیوں کیا کہ وہ غیر زبان نہیں تھے اور ان کو تصور کرے؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں میں دوسرا کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 2 آیت، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں بات کرتا ہے جی وہ آدمیوں سے بات نہیں کرتا بلکہ خدا سے اس لیے ہاں جی، جو بیگانہ زبان میں ہاں جی کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا، پھر کس سے کرتا ہے؟ بلکہ خدا سے، بلکہ وہ تو خدا سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہتے ہیں کہ جو بات وہ خدا کے ساتھ کرتا ہے وہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بھائی جب بات خدا سے ہو رہی ہے تو آپ اس کو کیسے سمجھ آئے گی؟ اگر کسی ٹیلی فون پر کوئی بات کر رہا ہو تو جو باتیں خدا سے ہو رہی ہیں آپ سمجھ لیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ بات تو وہ ہے، آپ اس کے ہوٹوں سے اشارہ سمجھ تو سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے یا وہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن کیا وہ ایک تکا ہے جو لگ گیا تو ٹھیک، نہ لگا تو بھی ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، اور اس کی کوئی نہیں سمجھتا، سمجھے گا بھی کیسے؟ کیونکہ اس کی بات خدا کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جی حالانکہ وہ اپنی روح کے حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کرتا ہے، بھید کی باتیں کہتا ہے، وہ بھید کی باتیں کر رہا ہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر لکھا ہے جو روح القدس میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ روح القدس جو خدا نے کیوں بیگانہ زبان میں بات کی، اس کا کیوں چناؤ کیا ہے، اس کی ایک وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دانیل کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا نے دانیل کو کہا تیری قوم کے لیے 70 ہفتے مقرر کر دیے ہیں، لیکن اس نے کہا ہے خدا مجھے ان 70 ہفتوں کا جو مطلب ہے، جو مقصد ہے وہ مجھے سمجھا دے۔ اور اس کی دعا آسمان پر پہنچ گئی، اور فرشتہ وہاں سے اس کو اس بات کو سمجھانے کے لیے جواب لے کر آ رہا ہے، لیکن ابلیس کے کرندوں نے اسے راستے 21 دن تک پکڑے رکھا۔ کتنے دن؟ 21 دن تک اسے نیچے دانیل کے پاس آنے نہیں دے رہے، اور اوپر ہی ان ابلیس کے جو کرندے ہیں انہوں نے اسے پکڑ رکھا۔ اور پھر خدا نے اور فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے اس سے جنگ کی، جہاں اس کا وہاں سے رہا کیا، اور وہ جا کر نیچے دانیل کے پاس گیا، کہنے لگا خدا تعالیٰ کے بندے تیری دعا اسی روز سن لی گئی تھی، لیکن میں جب جواب لے کے آ رہا تھا تو ابلیس کے کرندوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ اب خدا نے اس کا ایک بہتر حل سمجھا ہے، کیونکہ وہ ایک لوسیفر فرشتہ تھا جو پورا یاد رکھتا ہے، وہ ہر زبان جانتا ہے، ہر بندے کو جانتا ہے، کیونکہ وہ آپ شیطان بنا ہے، پہلے لوسیفر تھا، لیکن بہت خوبصورت تھا۔ اس کو خدا نے اپنا کمال اس پر ختم کیا ہے۔ بائبل مقدس کو جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے تو خاتم الکمال ہے، تو خاتم الکمال ہے، کمال تجھ پر خدا نے ختم کر دیا ہے، لیکن اس کے اندر غرور اور گھمنڈ چھا۔ خدا کو غرور اور گھمنڈ پسند نہیں ہے، بھلے وہ دولت کا ہو، بھلے وہ پڑھائی کا ہو، بھلے وہ حسن کا ہو، کسی طرح سے بھی، کیونکہ حسن کے بارے میں لکھا ہے حسن بھی بے ثبات ہے، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد تو سارا مقصد یہ ہوا کہ اس پر بھی غرور کرنا کسی کام کا نہیں ہے، تو ختم ہو جائے گا۔
थोड़े दिनों के बाद दुनिया पड़ जाएगी, फिर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर इसी वजह से मैं खुदा ने इस बात के लिए इसका हल निकाला और बगैर जुबान ईसाया की किताब लेकर वो बेगाना होठों से और बेगाना जुबान से लोगों से क्या करेगा, बात करेगा। और बाइबल मुकद्दस हमें ये बड़ी वजाहत के साथ बयान करती है कि खुदा ने इसका हल यही हुआ है, क्योंकि अब ये जुबान अब इस नहीं समझता कि खुदा के दरमियान और उस बंदे के दरमियान क्या बात हो रही है, वो उसका रूह जानता है और खुदा जानता है। ये इसी वजह से खुदा ने इस गैर जुबान का जो है इसका सिलसिला शुरू किया, ताकि जब वो खुदा से बातें करे तो अबलीस ना समझ सके, अबलीस ना समझ सके। इसलिए खुदा ने इस बात का जो है आगाज किया है कि लोगों इसे खुदा समझे या उसके अंदर की रूह समझे के बाद हो गया। और इसी बात को जब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, पहला करंथियों पीछे आ गया थोड़ा सा 12 बाब की 3 आयत से पढ़ेंगे। मैं बताता हूँ हाँ जी, कि जो कोई खुदा की रूह की हिदायत से बोलता है, बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा की रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूह कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। यीशु खुदावंद है, खुदावंद का मतलब होता है वो मालिक, और उसने अपने लहू से क्या किया है, खरीदा है, और खरीद कर वो हमारा मालिक बन गया है। जली रूह कुद्दस का ये भी निशान है कि वो लोग यीशु मसीह को खुदावंद मानते हैं, और वो खुदावंद है भी। यीशु मसीह ने जब यूहन्ना के इंजील में कहा तो वहां पर लिखा है कि उसने कहा तो मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ, मैं खुदावंद हूँ, उस्ताद भी हूँ, क्योंकि निकोदेमुस ने भी उसे कहा तू उस्ताद हो गया है, क्योंकि जो बातें तू करता है, जो बातें तू कम से तू करता है, कोई नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। जब तक खुदा उसके साथ ना हो, उसने भी उसको उस्ताद बनाया है, शागिर्द भी उसको उस्ताद और खुदा को कहते हैं। और ये बाइबल आगे बढ़ेगी, इसकी 11 आयत को पढ़ते हैं। लेकिन ये सब तस्वीरें, हाँ जी, लेकिन ये सब तस्वीरें वो ही एक रूह करता है। इसकी तरफ थोड़ा 10 आयत को पढ़ें। किसी को मौजों की कुदरतें, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को दर्जा जुबान। कहीं किसी को रूहों का क्या है इम्तियाज, रूह को तसावुर इसलिए दिया गया है कि आप रूहों को पहचान सकें। आप रूह को इम्तियाज का मतलब समझते हैं कि क्या आप दूसरों को क्या कर सकें, पहचान सकें। अगर आप किसी को पहचान ही नहीं पा रहे कि ये बंदा वाकई खुदा की तरफ से है या अपनी तरफ से निकल खुद साख्ता पापी बन गया है, तो आप मोहम्मद से पाप नहीं समझे। लेकिन रूह कुद्दस हमें बताता है कि इम्तियाज करें। रूह कुद्दस हमें इसलिए दिया गया है दूसरों को परखें, इसलिए लिखा है हर एक रूह का यकीन ना करो, लोगों को आजमाओ कि खुदा की तरफ से है कि नहीं। अगर हमें अभी तक लोगों का इम्तियाज करना नहीं आया तो इसका मकसद है कि हम कोई रूह कुद्दस है नहीं। सिर्फ गैर जुबानें बोलना ही काफी नहीं है, क्योंकि गैर जुबानें अभी हर वो काम करता है जो खुदा करता है। वो खुदा के हर काम की क्या करता है, नकल करता है। क्या करता है, नकल करता है, और वो भी ऐसा करता है। हम एक जगह पर बंदूक को निकालने के लिए गए तो वहाँ पर वो हमारे सामने खाना बड़े जोश में
बारे में दुआ कर रहा था तो वो उनसे ज़्यादा कर रहा है, वो उनसे ज़्यादा दुआ कर रहा है। इसका मतलब है कि वो हर काम की क्या करता है, नकल कर लेता है। इसलिए हमें इम्तियाज दिया गया है कि हमें इस रूह को दिया गया ताकि दूसरा का इम्तियाज कर सके। जी और आगे किसी को तरह तरह की जुबान, किसी को तरह तरह की जुबानी, किसी को जुबानों का तर्जुमा, किसी, लेकिन ये क्या होता है जी, लेकिन ये सब तस्वीरें, लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है, वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता और है जिसको जो चाहता है वो बांटता है। ये रूह कुदस की उधर से होता है। और ये इसका अगला हिस्सा जो है हम अगले संडे देखेंगे कि रूह कुदस जब इंसान के बदन में आता है तो क्या कुछ वक्त में आता है। और बहुत इसके तलक से मैं इस के तलक से पूरा दिन बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने मुख्तसर करके अगले मैसेज के लिए इसका कुछ हिस्सा रखा है ताकि हम इसकी मजीद और बात को समझ सकें कि रूह कुदस क्या कुछ कर सकता है। खुदा इस्लाम के मुझसे आपको